महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से आज क्लास 6 का टॉपिक वाटर लेके आपके साथ हूँ। ये मैं साइंस से लिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर के बिना हमारी कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई गतिविधि इसकी नहीं चल सकती है। तो इसलिए वाटर को मैंने लिया है। वाटर क्या है? एक सबस्टेंस है ऑन दिस प्लैनेट विच इज यूज्ड इन मैक्सिमम अमाउंट। मीन्स इस अर्थ के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उन सबसे वाटर ही क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में यूज होता है। अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट एज फाउंड 4/5 मीन 4/5 ऑफ इट्स सरफेस is covered by water. Water occurs as vapors in air, moisture in soil, hidden underneath as groundwater, present on the surface in oceans, lakes, rivers, etc. Water is essential for existence of the life on the earth, that is growth and development of plants, animals. वाटर अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है अर्थ के ऊपर। अर्थ को ही वाटर प्लैनेट कहा जाता है। इसके ऊपर 4/5 जो वाटर है वो अर्थ के ऊपर है और वाटर इसमें प्रेजेंट है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मॉइस्चर इन सॉइल, हिडन अंडरनीथ एज ए ग्राउंड वाटर, प्रेजेंट ऑन द सरफेस इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। और वाटर बहुत असेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स as well as animal. Water as a natural resource. All the life process requires water as it being a universal solvent, a prime natural resource. About 95% of water is in oceans, 3% as fresh water, river, lakes, etc. Water is made available to the water bodies such as lakes, streams, pond, river, groundwater by water cycle, or this water cycle is also called as hydrological water cycle. The disturbance in the water cycle by man has resulted a water shortage. So यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से क्या पूछा था, व्हाट इज ए वाटर, व्हाई इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फिर हाउ मच वाटर इज अवेलेबल और which are the sources of the water or in which shape water is found. अगर यहाँ का है how much water, it is 4/5 on the surface of the water. On in which sources water is available in vapors, it is available in moisture of the soil, it is hidden underneath of the earth as a groundwater, it is available on the surface in the form of oceans, rivers, etc. वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। 97% वाटर हमारे पास ओशन में है, 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है जो इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक्स है, और स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर एटसेट्रा। और दिस इज अवेलेबल इन ऑल द सिस्टम्स बाय द हाइड्रोलॉजिकल हमारे पास है। Sources of water, rivers and lakes, they are fresh waters resources. The amount of water in these resources vary from time to time and depend on the amount of rainfall. Most of the river sources such as Jhelum have snow-bound mountains as their source. During dry conditions, the water level in these resources fall, which often results water scarcity. So, the rainwater is collected, stored in the reservoirs such as ponds, small lakes, as the dams have been constructed on the rivers. Sources of water main क्या है? River and lakes. They are the fresh water resources. The amount of water in these sources vary from time to time and depend on the amount of the rainfall. Most of the rivers such as Jhelums have snow-bound mountains as their source. During dry conditions, the water level in these resources fall, which often results in water scarcity. So as the rainwater is collected, stored in the reservoirs such as ponds,
Small lakes, dams have been constructed on the river. Freshwater lakes, जम्मू रीजन में फ्रेश वाटर लेक्स देखा जाए तो सन्नासर लेक उधमपुर में है, मानसर एंड सुरेंसर लेक कश्मीर जम्मू डिवीजन में है, डल लेक श्रीनगर में है, फिर बुल्लर लेक बांदीपुर में है, और मनसाबल लेक जो है ये यहाँ पे। इसको सन्नासर, मानसर और सुरेंसर लेक को लिख लेना जम्मू डिवीजन, यहाँ गलती हुई है तो सो इसको ऑलवेज जम्मू डिवीजन में ही डाल देना। फिर मानसबल लेक है सफापुर में, ये गंदरबल में है, लद्दाख में पोंग लेक है और टसमोरी लेक है। ये दोनों लेक्स आपको लद्दाख के रीजन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर के बाद सी वाटर। Ocean seas are the largest reservoir of natural water. As streams, river flow into the sea, water is salty, about 3.5% salt. Because of this salty nature, human being cannot use the water for drinking and manufacturing, etc. Groundwater, the water which is stored underground, groundwater during rivers or snow. The water seeps into the ground and after trickling down gets collected above the water tight layer called the aquifer, while as the upper limit of this is called aquifer, while as the upper limit of this zone is called water table. The water from the water table is made available to the people of cities and towns by drilling wells, tubes, etc. इसमें हैंड पंप हो सकता है, लेक हो सकती है, जोन ऑफ सैचुरेशन, वाटर टेबल, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाएंगी। फिर हमारे पास है स्प्रिंग वाटर। द ग्राउंड वाटर में राइज अंटिल फाइंड्स ए वे आउट ऑन द सरफेस टू फॉर्म ए फ्लो ऑफ वाटर कॉल्ड स्प्रिंग। द स्प्रिंग वाटर इज क्लीन, फ्रेश एंड कोल्ड सच एज चश्माशाही, अशबल। However, some springs are hot, such as Tattapani. Importance of water for sustaining life. Every organization, such as plants and animals, human need water for the sustenance of the human. ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। Require more water than animals and plants for the bathing, etc. Next आपके पास आ जाएगा water in the living things. About 65% of the weight of the body is due to the water in human. Similarly, elephant में 75% है, कॉम मेज में 80% है, पोटैटो में 80% है, टमाटो में 95% है। Nutrients required by the organism get first dissolved in water and then taken acute loss of water from the body, dehydration, result the death of the organization. Human being need 2.4 liter with food or with beverage, tea, coffee, etc. Water is also needed for the circulation of the blood or to maintain the body temperature. Water is also needed in the home. In the home, approximately 260 liters of water per family used for cleaning, bathing, कैरिंग अवे द वेस्ट एटसेट्रा। फिर इसका नेक्स्ट है वाटर फॉर इरिगेशन। वाटर फॉर इरिगेशन की बात करें तो हमारे पास इरिगेशन के हिसाब से देखें, ये जो सी पॉइंट है वाटर फॉर इरिगेशन, इंडिया इरिगेशन वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 97% of all uses and accounts for 90% of the human use of fresh water. Most of the plants cultivated by man require huge quantity of water. In J&K, irrigation done through canals, wells, tanks, tubes, rivers, springs, seed of many plants are dispersed and transported through plants. अब यही है कि व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे कि कैसे रेन वाटर पहले क्या होता है, एवापोरेट होता है अर्थ से, जो भी इसको ओपन एयर मिलती है उससे एवापोरेट करके ऊपर जाता है, वाटर कंडेंस होता है,
फिर ये क्लाउड की फॉर्म में ले लेते हैं। जब क्लाउड ब्रेक होते हैं तो ये बारिश के रूप में हो जाता है, कहीं ये स्नो के ऊपर हो जाता है, तो वो कलेक्ट होता है, उसको हम यूज करते हैं एज ए फ्रेश वाटर। Hydrological water cycle is a regular exchange of the water between the surface of the earth and the atmosphere. Vapor passing into the air cool down from the clouds, and cloud produce rain and snow. Then excess water available over and land ultimately reaches ocean through river and other forms of the water flow. This cycle goes on and is called water cycle. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स, वी शुड मेक यूडियस यूज ऑफ इट सो इट कैन बी कंज्यूम्ड। द वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज। वाटर वेस्टेज शुड बी प्रिवेंटेड थ्रू बेटर प्लम्बिंग, रिपेयर ऑफ लीकिंग टेप्स, अवॉइडिंग ओवरफ्लो ऑफ स्टोरेज टैंक्स, irrigation to avoid water loss due to the irrigation of the canals should be made concrete. Afforestation and reforestation. All watersheds and the water catchment areas along the slope should be covered with forest. Rainwater. Rainwater should be stored in dams and reservoirs. Soil should be covered by plants so that the rainwater is absorbed by the soil. Rainwater tanks. In an area, rainwater should be stored in tanks. The water tanks provides water both for irrigation and human use. कंजर्वेशन की बात करें तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंजर्व करना। इसके कंजर्वेशन में सबसे पहला है कि आप मिनिमम वेस्टेज कीजिए। इरिगेशन में भी इसको जितना पॉसिबल हो उतना ही करें, कम कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, जहां जरूरत हो वहां प्लांट्स को दोबारा लगाओ। रेन वाटर को आप स्टोर कर सकते हो। सॉइल शुड बी कवर्ड बाय द प्लांट्स सो दैट द मॉइस्चर मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। रेन वाटर जो है इसके टैंक्स बनाए जाएं जो क्या करें, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा व्हाट इज ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? कलेक्शन, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दस कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर, सबसे पहले हम इसको कैसे कर सकते हैं? रूफ टॉप से। रूफ टॉप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो कैसे है? Here the rain water from the rooftop is collected through pipes and the storage in tanks. The water may contain soil dust particles from the roof and need filtration before use. The collected pipes from the roof can go directly into the pit to recharge or refill the ground water. So next हमारे पास है, ये हमने बनाया कि जैसे ये छत है, इस पे पानी जो पड़ा इसको हमने स्टोर किया और पाइप्स के थ्रू हम इस टैंक में ले गए। यही टैंक से हम इसको फिल्टर करके पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं या अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो यही इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ये वाटर एवेपोरेट हो रहा है, जैसे प्लांट छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि ये कुछ अर्थ अपने पास कंजर्व कर लेती है, कुछ एयर में चला जाता है। जो एयर में जाता है वो कूलिंग के बाद कंडेंस होकर दोबारा अगेन यहीं पे हमने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्ट, जैसे मकान है, इस पानी को हमने नीचे टैंक में भेज दिया तो इससे वाटर लेवल बहुत रेज हो जाता है, या इसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड क्या है, वाटर फ्रॉम द रोड साइड इज अलाउड टू गो डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज और रीफिल द ग्राउंड वाटर। जो रोड से रोड पानी आता है वो इतना साफ नहीं हो सकता, इसलिए उसको नीचे डाल दो ताकि वो ग्राउंड वाटर का लेवल या वाटर लेवल का टेबल को इंक्रीज कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि क्या है वाटर, कैसे कैसे हम इसको रख सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या इसके कंजर्वेशन के तरीके हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, और फिर उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मेन क्वेश्चन है। और अगले लेसन में हम आपके साथ करेंगे जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है इसी लेसन के,
वो अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, और आप घर बैठ इस लेसन को रिवाइज करते रहें। जहां प्रॉब्लम हो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।